So we shall be solving October-November 2023, paper 1, variant 3. Okay, the first question states, which statement about light microscopy is correct? As the resolution increases, the magnification increases. Magnification and resolution are not interconnected, like they're not dependent on each other. Resolution is dependent on the wavelength of the illumination. So हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो डिटरमिन करती है हमारी रेजोल्यूशन को. And magnification is dependent on the magnifying lenses or the power of the magnification of lenses. तो हमारे पास आपस में resolution and magnification are not related things. Next statement says, as the magnification increases, the image always becomes clearer. That's not true. अगर आप एक blurred image को, एक ऐसी image को जिसकी resolution कम है, उसको आप अगर zoom in भी करोगे, उसको आप magnify भी करोगे, तो वो picture आपकी clear नहीं होगी. Again, magnification and resolution, how clear an image is, they are not interrelated concepts. The resolution will decrease as colored light of increasing wavelengths is used. That is correct. Why? Because हमारे पास light जो होती है ना उसकी range होती है. Light की range is 400 to 700 nanometers. हमारे पास क्या कहते हैं विग्योर जो है हमारा जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें सारी जो लाइट्स हैं जो सारी लाइट रेज हैं उनकी जो wavelength है that's not same. We have red light which has the highest wavelength and then we have violet which has the lowest wavelength. तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम होता है उसपे हमारी जो wavelength होती है वो वेरी करी होती है. Resolution is usually the half of the wavelength. So 400 नैनोमीटर की अगर हम एक लाइट यूज करेंगे अगर हम वॉयलेट लाइट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी रेजोल्यूशन होगी 200 नैनोमीटर्स. एंड अगर हम 700 नैनोमीटर्स की लाइट यूज कर रहे हैं तो उस लाइट से जो हमारे पास रेजोल्यूशन प्रोड्यूस होगी इमेज में इन लाइट माइक्रोस्कोपी वो 350 नैनोमीटर्स होगी. सो अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो ये थोड़ा ना हमें क्या कहते हैं जो स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं रेजोल्यूशन विल डिक्रीज एज कलर्ड लाइट ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इज यूज्ड. हमारे पास क्या हो रहा है? What do you think? Is this statement correct? After looking to the relationship that I have explained, is the resolution decreasing as the colored light of increasing wavelength is increased? You can say कि हमारे पास ये जो है 700 नैनोमीटर्स पे हमारी ये वैल्यू तो ज्यादा हो रही है. पहले 200 था अब 350 हो रहा है. सो यू वुड से ना कि हमारे पास अगर हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं. ये सही बात है या गलत बात है? My question is, we are increasing the wavelength. 400 नैनोमीटर ऑफ लाइट से अगर हम 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट पे जा रहे हैं 400 नैनोमीटर्स पे हमारी रेजोल्यूशन थी 200 नैनोमीटर्स और 700 पे हमारी रेजोल्यूशन थी 350 नैनोमीटर्स. जो मैं 200 नैनोमीटर से 350 नैनोमीटर्स जा रही हूँ मेरी रेजोल्यूशन बढ़ रही है या मेरी रेजोल्यूशन कम हो रही है? इट इज डिक्रीजिंग एंड आई टेल यू व्हाई. रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है. If I ask you to define resolution, how would you define resolution to me? What's resolution? The ability to distinguish two distinct points as separate. The ability to distinguish two points as distinct, or you can say as separate. दो points को अगर हम clearly distinct points के फॉर्म में देख सकते हैं सेपरेट फॉर्म्स में देख सकते हैं तो हमारी रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी है. इज दैट करेक्ट? If I'm able to see two points distinctly, is that a good resolution or is that a bad resolution? It's a good resolution. हमारे पास 350 नैनोमीटर्स रेजोल्यूशन होने का मतलब है distance of 350 nanometers should be present to view two points as separate. यहां पर
distance between the 2 points should be of 200 nanometers for us to see the 2 points as separate. अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या कहते हैं 0.5 नैनोमीटर्स रेजोल्यूशन होती है। 0.5 तो बहुत छोटी वैल्यू है 200 के मुकाबले में, तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन सबसे कम होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे अच्छी रेजोल्यूशन है, हमें तो सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं, राइबोसोम नजर आ रहे होते हैं। 0.5 नैनोमीटर्स तो बहुत बुरी हमारे पास रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं ना, रेजोल्यूशन की टर्म में हम ये नहीं देख रहे होते कि नंबर क्या है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन हमें बता रही होती है कि दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर देम टू बी व्यूड एज डिस्टिंक्ट। अगर हमारे पास हम 0.5 नैनोमीटर्स के डिफरेंस पे भी दो चीजों को क्लियरली देख सकते हैं एज सेपरेट, दैट्स अ गुड रेजोल्यूशन। अगर मैं उसको कंपेयर करूं 200 नैनोमीटर से, तो दो पॉइंट्स के दरमियान 200 नैनोमीटर्स का फर्क होगा, तब मैं दो पॉइंट्स को क्लियरली देख पाऊंगी। सो बिटवीन 0.5 एंड 200, 0.5 इज अ बेटर रेजोल्यूशन, इज अ ग्रेटर रेजोल्यूशन। अब अगर हम 200 नैनोमीटर्स को कंपेयर करें 350 नैनोमीटर से, 200 नैनोमीटर्स पे अगर मुझे किसी दो पॉइंट्स को क्लियरली देखना है, तो उनमें अगर 200 नैनोमीटर्स का फर्क होगा तो मुझे क्लियरली दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज कर दूं, वही 200 नैनोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो मुझे 700 नैनोमीटर्स की लाइट पर नहीं दिखाई देगा। वो दो सेपरेट पॉइंट्स जिनके दरमियान 200 नैनोमीटर्स का डिफरेंस है, जो मैं क्लियरली देख सकती थी एट 400 नैनोमीटर्स वेवलेंथ, आई वोंट बी एबल टू सी देम एट 700 नैनोमीटर्स। व्हाई? बिकॉज 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ पे दो पॉइंट्स के दरमियान 350 नैनोमीटर्स का डिफरेंस होगा, तब वो मुझे क्लियरली नजर आएंगे। सो इन रेजोल्यूशन वी आर सेइंग कि हमारे पास जितने छोटे ऑब्जेक्ट्स, जितने कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं, उतनी अच्छी रेजोल्यूशन है। सो दिस इज योर हाईएस्ट रेजोल्यूशन and this is your lowest resolution. 200 is in the middle. So now if I ask you, the resolution will decrease. Our ability to see 2 points as separate would decrease when we are increasing the wavelength of the colored light. So this is a correct answer. So as the wavelength increases, the resolution decreases. Yeah, they have an inverse relationship. Wavelength decrease होगी, resolution increase होगी. Wavelength increase हो रही है तो resolution decrease होगी. And yes, magnification and resolution are terms that relate to the same factor. No, magnification relates to how enlarged something is, and resolution relates to how clear something is. हम एक blurred चीज को भी, एक unblurred चीज को भी enlarge करके देख सकते हैं। Resolution का ताल्लुक होता है clarity of the picture से। The diagram shows a stage micrometer scale viewed through an eyepiece containing a graticule. The small divisions of the stage micrometer scale are 0.1 millimeter. So this is basically 0.1 millimeter. The stage micrometer scale is replaced by a slide of a plant cell. What is the maximum actual length of the nucleus in the plant cell? This is the nucleus basically. First, let's calibrate the eyepiece graticule. 0.1 millimeter is equals to 90 minus 50. These would be 40 units of EPG. So let's figure out what would be 1 unit of EPG. So this would be 0.1 divided by 40. X comes out to be 0.0025 millimeters. Is that correct? Are you guys also getting that? Or you can also write this as 2.5 into 10 to the power minus 3 millimeters. यही आ रहा है कैलकुलेटर पे? ना, अगर हम यहाँ पर देखें,
सो हमारे पास 1 2 3, this is basically 69 and this is 75 76 77 78. So 78 minus 69 are basically 9 units. So 9 units of EPG है हमारा न्यूक्लियस की रेंज. So 9 units को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 into 10 to the power minus 3 millimeters से. This would come out to be 0.0225 मिलीमीटर्स. हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है मिलीमीटर्स में, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे माइक्रोमीटर्स में. मल्टीप्लाई बाय 1000. This would come out to be 22.5 micrometers. Now over here 22.5 micrometers से closest जो value है वो क्या है 25 micrometers, and hence B would be our correct answer. What is the correct order for the yeah, I will be uploading these PDFs on the drive. Don't worry. What is the correct order for the involvement of the cell structures in the synthesis and secretion of an enzyme? So enzyme is a protein. Cell surface membrane, Golgi body, nucleus, RER. So basically protein synthesis starts in the nucleus, then in the RER, then Golgi body, and eventually it is secreted through the cell surface membrane. So 3, 4, 2, and 1, which is option number C. Centrioles, cilia, microtubules, and microvilli are structures found in eukaryotic cells. Which statement about these cellular structures is correct? Centrioles, cilia, and microvilli are composed of microtubules. Centrioles and cilia are made up of microtubules. Microvilli is basically made up of actin filaments, not microtubules, so A is incorrect. Centrioles play a role in mitosis and semi-conservative DNA replication. Incorrect. It plays a role in mitosis, that also only for animal cells, not for plant cells, and it does not have any role in the semi-conservative DNA replication. Cilia and microvilli both increase the cell surface area for absorption. Microvilli, yes, but for cilia is responsible for the rhythmic wave-like movement. So cilia is responsible for rhythmic wave-like movement. इसी की वजह से हमारे पास जो हमारा what do you say म्यूकस है वो मूव हो पाता है. So cilia is responsible for creating asynchronous movement, not for the increase in the cell surface area for absorption. Microtubules are made of protein and form the spindle in mitosis. That's true. They are made up of tubulin proteins. So option number B is the correct answer. Which description of Plasmodesmata is correct? There are channels through plant cell walls lined by the cell surface membrane. Yes. There are channels through plant cell walls that are formed from proteins. They are not formed from proteins. There are channels required for the movement of water through the apoplast pathway. In the apoplast pathway, हमारे पास plasmodesmata के through movement नहीं होती, cellulose cell wall के through movement होती है. Symplast pathway में आपकी movement होती है water की through the plasmodesmata, through the cell membrane, through the cytoplasm. So C is incorrect. They can become lignified and form pits. Now this is contradicting because pits हमारे पास xylem का unlignified part होता है. Pits हम xylem के उस हिस्से को कहते हैं where lignification is absent. So become lignified and form pits in the wall of xylem vessel elements is absolutely contradictory. So D is incorrect. Option A is the only plausible answer. The channels also pass through the membrane. हमारे पास you're asking about this वाला part, ये वाले channels की आप बात कर रहे हो? बेसिकली देयर साइटोप्लाज्मिक चैनल्स. सही है. ये बेसिकली एक सेल का साइटोप्लाज्म एक चैनल, जैसे हमारे पास रिवर्स होते हैं ना, रिवर्स छोटी छोटी स्ट्रीम्स में जैसे डिवाइड कर रहे होते हैं, छोटे छोटे वाटर चैनल्स में जैसे डिवाइड कर रहे होते हैं.
बिल्कुल वैसे ही हमारे पास दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के दरमियान सेल वॉल का कुछ एरिया होता है जो बीच बीच में से एब्सेंट होता है। उस एब्सेंट एरिया में एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में चैनल लाइक मूवमेंट के थ्रू मूव कर सकता है। जो बीच में हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होती है। सो हमारे पास क्या कहते हैं, इट्स बेसिकली लाइक अगर हम एक रिवर को एक क्या कहते हैं दूसरी तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। सो साइटोप्लाज्म, इट्स लाइक एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू वन अदर प्लांट सेल। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसलिए वी आर सेइंग दैट ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Which cell organelle does not have nucleic acid? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, सो इट हैज न्यूक्लिक एसिड। गोल्जी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ना डीएनए होता है ना आरएनए होता है, बल्कि क्लोरोप्लास्ट में तो 70s राइबोसोम्स भी होते हैं, तो आरएनए भी होगा, एमआरएनए भी होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास प्रोटीन होता है। सेम गोज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए भी होता है, 70s राइबोसोम्स भी होते हैं, एमआरएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। So it also has nucleic acids and ribosomes have rRNA. So they also have nucleic acid. The only organelle which does not have nucleic acid in this list, it is Golgi. Which processes occur in eukaryotes and prokaryotes? Hydrolysis, mitosis cannot take place in prokaryotes because mitosis is a nuclear division, and bacteria, they do not have nucleus, so there is no nuclear division which can take place. So A is out, B is out, एंड डी इज आउट। हम सारे माइटोसिस वाले ऑप्शंस को जब एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास जो वाहिद आंसर बचेगा वो सी बचेगा। सो हाइड्रोलिसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं दे occur in your eukaryotes as well and prokaryotes as well। हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस दोनों में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस occur in both eukaryotes and prokaryotes। हाइड्रोलिसिस, हमारे पास जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उनकी डाइजेशन जो हो रही होती है वो बिल्कुल आपके यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में हो सकती है। Which bonds are present in all viruses? All viruses basically have RNA or DNA, and all viruses have protein coats. So this means peptide bonds होंगे और हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर bonds होंगे। Phosphodiester bonds. Now peptide bonds are covalent. Why are they covalent? Because वो हमारे पास होते हैं CONH, which are basically bonds between non-metals. So covalent bond होगा, phosphodiester bond होगा, ester bond नहीं होगा. This would be 1 and 3 only. Option number C. नहीं ना, हमारे पास C होगा ना even, because B में they are saying ester. And ester हमारे पास नहीं present होगा क्योंकि हर आपका वायरस जो है उसका एक फॉस्फोलिपिड कोट नहीं होता ना, सिर्फ कुछ एनवेलप वायरसेस होता है। The diagram shows the structure of a monomer. This is basically your alpha glucose, क्योंकि AB glucose below, oh sorry, OH below, so it would be alpha. Which molecule contains this monomer? Glycogen में alpha glucose होती है, myelopectin में alpha glucose होती है, sucrose में alpha glucose होती है, so option number B, जहाँ पे तीनों का overlap आ रहा है, that is basically our answer. Yes, Amen. अच्छा, हमारे पास वी नो, पहले तो ये देख लो जो आपके पास तीनों वो है ना एंटिटीज हैं। फर्स्ट, आई ऑलवेज से फॉर ऐसे क्वेश्चंस आप ये करेक्ट ये चूज कर लो कि किसमें प्रेजेंट है और किसमें प्रेजेंट नहीं है, आपके करेक्ट आंसर्स किस किस के हो सकता है। यहाँ पर तीनों सर्कल्स में वो चीज प्रेजेंट है, तो आप क्या करो, आप तीनों सर्कल्स को ओवरलैप कर लो। नाउ टेल मी, कौन सा ऑप्शन तीनों सर्कल्स में प्रेजेंट है? अगर हम ए को देखें, ए खाली अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के बीच में प्रेजेंट है, सुक्रोज के बीच में तो प्रेजेंट नहीं है। एक सेकंड, ये क्या हो गया? So this is not the question paper we were doing. This one. हाँ, अगर आप सी को देखो, सी इज एन ओवरलैप बिटवीन अमाइलोपेक्टिन एंड सुक्रोज, देयर इज नो ओवरलैप विद ग्लाइकोजन। डी में तो किसी के साथ ओवरलैप हो ही नहीं रहा, तो हमारे पास अगर हम बी देखें तो बी में हमारे पास जो ओवरलैप है, हमारे पास वो
ग्लाइकोजन के साथ भी है, ओवरलैप हमारे पास सुक्रोज के साथ भी है, ओवरलैप हमारे पास क्या कहते हैं अमाइलोपेक्टिन के साथ भी है। सो जिस एरिया में आपके करेक्ट आंसर्स या सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है वो फिर आप चूज कर दोगे। सो इसलिए पहले आइडेंटिफाई कर लो किन किन चीजों में प्रेजेंट है, ताकि फिर आप सर्कल के थ्रू आइडेंटिफाई इजिली कर लो। सही। अच्छा जी, a triglyceride consists of glycerol and three different fatty acids: linoleic acid, oleic acid, and palmitic acid. The diagram shows one possible arrangement of the fatty acids L, O, and P in the molecule. What is the total number of different arrangements of the fatty acids in this triglyceride? आप सबने ऑर्गेनिक केम पढ़ी होगी। ऑर्गेनिक केम में क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन है, उनकी पोजीशंस को हम सेम ही कंसिडर करते हैं। क्योंकि अगर हम चेन इस तरह से पढ़ें तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, और अगर हम चेन को इस तरह से पढ़ें तो हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन और ये लास्ट कार्बन हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? ना तो हमारे पास अगर हमें डिफरेंट अरेंजमेंट क्रिएट करनी है तो हमें जो बीच वाला कार्बन है उस पे अगर हम क्या कहते हैं अपने पॉसिबिलिटीज चेंज करते रहेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास एक तो इन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जिसमें ओ बीच में। एक हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जहां पे बीच में क्या आ जाए, पी आ जाए, और इधर और उधर ओ आ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बीच में हम एल को ऐड कर दें और ऊपर पी और ओ आ जाए। सो हमारे पास मिडिल पोजीशन पे हम जितने चेंजेस कर सकते हैं उतने चेंजेस हम करेंगे, तो हमारे पास क्या कहते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। दीज आर द ओनली थ्री डिफरेंट अरेंजमेंट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Which statement about phospholipid molecules is correct? They contain one saturated fatty acid and two unsaturated fatty acids. नो हमारे पास एक तो कोई फिक्स रेशियो नहीं होता कि कितने फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे कितने अनसैचुरेटेड होंगे, और दूसरा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में खाली दो फैटी एसिड्स होते हैं, तीन फैटी एसिड्स नहीं होता। दे कंटेन थ्री फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हमारे पास क्या कहती हैं न्यूक्लिक एसिड्स में बनते हैं, फॉस्फोलिपिड्स में एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। They contain hydrophobic regions and hydrophilic regions. Yes. They contain a hydrophobic phosphate group. Incorrect. Hydrophobic नहीं होता, hydrophilic होता है वो. So option C is the correct answer. Hydrogen bonding explains many of the properties of water, including high latent heat of vaporization and high specific heat capacity. For which processes in plants is hydrogen bonding in water important on hot sunny days? प्रिवेंटिंग डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स इन लीव्स। हमारे पास अगर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है तो हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो विद इन नैरो बाउंड्स मेंटेन रहता है, वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता आपके बाहर के हाई टेम्परेचर से। सो जो इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सस्टेन हो पाता है एट अ कांस्टेंट नैरो रेंज, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, and high specific heat capacity is due to hydrogen bonding. So one is correct. D को हम eliminate कर देते हैं। Reducing water loss by evaporation. हमारे पास high latent heat of vaporization की वजह से evaporation के दौरान बहुत ज्यादा internal heat use होती है to evaporate very few amount of water. So yes, reducing water loss by evaporation is also something that we associate with hydrogen bonding. Allowing leaves to cool down quickly at night. हमारे पास जो cooling down का process होता है ना, the cooling down process mainly depends on radiation. आप लोगों ने थर्मल फिजिक्स में, थर्मल फिजिक्स ओ लेवल में पढ़ी होगी, आई डोंट नो ए लेवल्स में आप लोग पढ़ते हो थर्मल फिजिक्स की नहीं। उसमें क्या कहते हैं रेडिएशन कॉन्जर्वेशन और कंडक्शन पढ़ते हो कि नहीं, पर जो हमारी मेजर लॉस ऑफ हीट होता है ना वो हमारे पास क्या कहते हैं रेडिएशन के थ्रू होता है। सो allowing leaves to cool down quickly at night is because of radiation, not because of hydrogen bonding. So 3 is out. Holding the column of water in xylem vessels together, that is because of adhesion, and yes, adhesion is because of hydrogen bonding. So option B is the correct answer. Okay, I'll explain point number 2.
रिड्यूसिंग वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, हमारे पास वाटर इज कन्वर्टेड टू वाटर वेपर। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में हमारे पास चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर हो रहा है, हम लिक्विड से जा रहे हैं गैस में। अगर हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी फॉर वेपराइजेशन, इज दैट करेक्ट? तो अगर हमें बहुत तो हमारे पास क्या कहते हैं, देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू गेट इवेपोरेटेड। थोड़े से वाटर को भी इवेपोरेट होने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी। कम हीट एनर्जी पे वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, यानी कि वाटर जो है वो आसानी से इवेपोरेट नहीं होता। So the fact that water has a high latent heat of vaporization ensures कि hot sunny days पे अगर evaporation हो गई तो बहुत कम हो, जिसकी वजह से हमारे पास रिडक्शन इन हमारे पास रिड्यूसिंग वाटर, इससे क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर लॉस होता है ड्यू टू एवापोरेशन वो ओवरऑल बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं होगा हॉट सनी डे पे। यस, हमारे पास हीट एनर्जी है सन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, लेकिन अगर वो सन की वजह से हॉट एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हमारे पास क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होगी, तो बहुत थोड़ा सा वाटर इवेपोरेट होगा। डज दिस मेक सेंस? इट इज नॉट इजिली इवेपोरेटेड बेसिकली, और अगर इजिली इवेपोरेटेड नहीं है तो वाटर लॉस इतना आसानी से नहीं हो रहा, कम हो रहा है। आई एम सॉरी if my explanation is not very good today. It's just that I got done from back to back minutes, so मेरा brain fog अभी भी चल रहा है। Okay, that's good. Which feature of cellulose molecules contributes to the function of plant cell walls? Adjacent cellulose molecules are linked by glycosidic bonds. That's true, but that is not the reason of the high tensile strength. The high tensile strength is basically because of the immense amount of hydrogen bonding between the cellulose molecules. So hydrogen bonding की वजह से high tensile strength बनती है, glycosidic bonds की वजह से नहीं। ब्रांच चेन्स ऑफ बीटा ग्लूकोज ब्रांच चेन्स नहीं होती हमारे पास, सेल्यूलोज इज एन अनब्रांच स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज, यहीं पर हम कैंसिल कर देंगे, सेल्यूलोज में अल्फा ग्लूकोज नहीं होती। अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ बीटा ग्लूकोज आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अनब्रांच चेन्स होंगी तो हमारे पास क्या कहते हैं, दे वुड कॉम्पैक्टली कम टुगेदर एंड हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेल्यूलोज फाइबर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? इज देयर एनी further elaboration you guys want for this answer? Okay. Which statements describe some enzyme actions? Enzymes hold reacting molecules so that their reactive groups are close together. ये हमने बिल्कुल enzymes को जब start किया था तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास हम कहते हैं ना that enzymes reduce the activation energy of a process by lowering the activation energy. तो activation energy क्या होती है? The energy required for a process to take place, for a reaction to take place। और हमारे पास अगर लैब में कोई रिएक्शन हो रहा होता है या अगर वैसे भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी आएगी एंड इवेंचुअली एक्टिवेशन एनर्जी की लेवल पे वो रीच करेंगे और रिएक्शन हो जाएगा। ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास यूजुअली जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, इट इज कंटेन्ड विद इन नैरो लिमिट्स। अगर मैं ह्यूमंस की एग्जांपल दूं, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है इट इज मेंटेन्ड अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। मैं जाके कोई माचिस से इग्नाइट नहीं कर सकती रिएक्शंस को, और मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली इतना ज्यादा रेज भी नहीं होता कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो। सो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कैसे करता है? The point of providing thermal energy to the molecules is that they come close together, उनकी collision बढ़े। क्योंकि जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की तो वो बम्बार्ड करेंगे एक दूसरे को और वो फिर रिएक्ट कर जाएंगे। एंजाइम्स क्या करती हैं? एंजाइम्स कहती हैं चलो तुम लोग एक 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो टेम्परेचर नहीं हो सकता, तुम लोगों को थर्मल एनर्जी नहीं मिल रही, तुम लोगों की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन नहीं बढ़ रही, तो तुम लोग ऐसा करो मेरी एक्टिव साइट में आ जाओ। और एक्टिव साइट में जो एंजाइम होती है वो क्या करती है, हमारे पास सबस्ट्रेट को, हमारे पास रिएक्टेंट्स को क्लोज टुगेदर ले आती है इस तरह से कि उनका रिएक्शन टेक प्लेस हो सके एट लोअर एनर्जी लेवल्स।
So yes, enzymes hold reacting molecules so that their reactive groups are close together for a reaction to take place. Is this clear? Point number one. In an enzyme catalyzed reaction, more molecules have sufficient energy to react than without the enzyme. Yes, हमारे पास enzyme catalyzed reaction में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है टू रिएक्ट, तभी हमारे पास एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं. अगर हम विदाउट एंजाइम सबस्ट्रेट को छोड़ देंगे तो हमारे पास इट वुड टेक लॉन्गर फॉर दोस मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विद ईच अदर. Reactions catalyzed by enzymes take place at a lower temperature than they would have without the enzyme. Yes, I just explained this. So all these statements are correct. Any statement which is unclear and you would want me to elaborate upon? Yes, Eamon. The last statement. Okay. Reactions catalyzed by enzymes take place at a lower temperature than they would without the enzyme. मैंने अभी बोला कि हमारे पास क्या कहती हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पर, कि हमारे पास क्या कहते हैं एंजाइम्स बेसिकली लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ प्रोसेस फॉर अ रिएक्शन. इज दैट करेक्ट कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है? ठीक है. अब हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इट इज डिस्क्राइब एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट टुगेदर. हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी अदरवाइज कहाँ से मॉलिक्यूल्स गेन कर रहे होते हैं? हीट एनर्जी से. टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ती है, तो रिएक्शन टेक प्लेस होता है. एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन पे में हमारे पास वही रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे लोअर एनर्जी पर हो रहा है. क्यों? क्योंकि द एंजाइम इज ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन इट्स एक्टिव साइट. सो हमें विदाउट एंजाइम हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों करवा हो रहा होता है? इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारे पास हायर टेम्परेचर पर ही मॉलिक्यूल्स करीब आ पाती हैं, कोलाइड कर पाते हैं. लेकिन एंजाइम में क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइट में फिट इन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे से कोलाइड करके रिएक्ट कर जाते हैं. So we do not need very high temperatures for collisions to take place within the enzyme at a lower temperature because the molecules are close together within the active site. हमारा reaction lower temperatures पर हो जाता है enzyme में. Is this clear? Okay. Influenza virus has an enzyme called neuraminidase, which breaks down glycoproteins in the surface membrane of the cell that the virus will infect. तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस के पास एक एंजाइम होती है. वो एंजाइम क्या करती है कि जो होस्ट सेल है जिसको वायरस पेनिट्रेट करेगा, उस होस्ट सेल की जो सरफेस मेम्ब्रेन है उसके ग्लाइकोप्रोटीन्स को ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देती है. The glycoprotein binds to the active site of neuraminidase by induced fit. So जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करती हैं, तभी ये एंजाइम उन ग्लाइकोप्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करवा पाती है. Which statements about the induced fit hypothesis of enzyme action are correct? The active site must have the same shape as the substrate for them to bind together. Incorrect. Induced fit का मतलब ये होता है कि active site की जो shape है that is not exactly complementary to the shape of the substrate, and the active site molds itself. It is flexible enough to change its shape according to the shape of the substrate. So induced fit में active site की shape same हो substrate से, that is not necessary. So statement 1 is out. Option A is out. This enzyme is less likely to be affected by non-competitive inhibitors than an enzyme working by the lock and key mechanism. अच्छा, हमारे पास this enzyme is less likely to be affected by competitive inhibitors. The reason is हमारे पास क्या कहती हैं ये एंजाइम जो है इसकी शेप जो है it is not complementary to our substrate. And if its shape is not complementary to our substrate, तो substrate से similar जो inhibitors होंगे वो उनसे भी इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट अगर सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो कंपेटिटिव इनहिबिटर से भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी. सो इट इज लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स तो आपकी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है। एलोस्टेरिक साइट का ताल्लुक आपके सबस्ट्रेट की शेप से नहीं होता। सो द एंजाइम इज लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, इज दिस क्लियर इवन? So 2 is out. So B is out, C is out. We're left with option D only. The substrate is converted to product by specific R groups in the active site, just like the lock and key hypothesis or the lock and key mechanism. That's correct. हमारे पास क्या कहते हैं, जिस तरह एंजाइम रिएक्शन करवा रही होती है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट का लॉक एंड की हाइपोथेसिस में, बिल्कुल उसी तरह से इंड्यूस फीड में भी हमारे पास कन्वर्जन टू प्रोडक्ट्स इसी तरह से हो रही होती है। The graph compares the effect of temperature on the activity of the protease enzyme papain when in solution in a free form and when immobilized in alginate beads. Which statement about the effect of immobilization of papain is correct? So this is basically the immobilized enzyme. It alters the shape of papain's active site at higher temperatures. No, हमारे पास क्या कहते हैं, सिर्फ कवर कर रहा होता है एल्जिनेट एक्टिव साइट को, वो चेंज नहीं कर रहा होता उसकी शेप। इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ पपाइन एट हायर टेम्परेचर्स। इमोबिलाइजेशन की वजह से पपाइन की एक्टिविटी एट हायर टेम्परेचर्स चेंज नहीं हो रही। इट्स जस्ट कि हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी एंजाइम हो इमोबिलाइज या मोबिलाइज, वो एट हायर टेम्परेचर्स उसकी डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। इट हैज नथिंग टू डू विद इमोबिलाइजेशन स्पेसिफिकली। It increases the stability of papain at higher temperatures. Yes, हमारे पास फ्री papain बहुत ज्यादा rapidly और almost उसकी activity बहुत ज्यादा कम हो गई है at 80 degree Celsius in comparison to immobilized papain. So this is more thermostable. It reduces the number of collisions of papain with the substrate. Incorrect. So option C is the correct answer. Okay, the diagram shows how adrenaline activates processes inside a cell. Which row is correct? Type of receptor molecule, result of ligand binding to the receptor. अच्छा जी, हमारे पास क्या कहते हैं, एड्रेनालिन इज अ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसको हम लिगेंड भी बुलाते हैं। हमारे पास एड्रेनालिन बाइंड कर रहा है आपके रिसेप्टर के साथ। क्यों? क्योंकि वो सेल सर्फेस मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक प्रोटीन नहीं, हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। This is a hydrophilic ligand and that is why it is binding to a receptor. हाइड्रोफिलिक है तो वो फॉस्फोलिपिड रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड हमारे पास फॉस्फोलिपिड रिसेप्टर्स जो होते हैं, एक्चुअली हमारे पास फॉस्फोलिपिड से अगर वो क्रॉस कर सकता या फॉस्फोलिपिड से वो अट्रैक्शन डेवलप कर सकता तो वो तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर लेता ना, उसको रिसेप्टर की जरूरत ही नहीं होती। The reason why a molecule requires a receptor, a cell surface membrane receptor, is because it cannot cross the cell surface membrane. It cannot cross the phospholipid bilayer. So हमारे पास receptor type phospholipid नहीं हो सकती. It has to be protein. ठीक है? So phospholipid नहीं होगा हमारा receptor molecule. Result of ligand binding to the receptor. अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, रिसेप्टर वुड नॉट लीव द मेम्ब्रेन, इट वुड चेंज इट्स शेप। जब वो रिसेप्टर चेंज, जब हमारे पास जब भी लिगेंड आकर बाइंड करता है तो हमारे पास रिसेप्टर जो है ना, इट अंडरगोज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज। क्योंकि जब ये कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा तो ये चेंज जो है ये हमारे सेल को एक मैसेज देगा दैट यू नीड टू कैरी आउट सर्टेन प्रोसेसेस। सो हमारे पास रिसेप्टर में एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा जिसकी वजह से बाकी जो प्रोसेसेस हैं सेल के अंदर वो एक्टिवेट होंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The statements are comparisons of endocytosis and exocytosis. So endocytosis में something comes inside, exocytosis में something goes out. Both are mechanisms that involve vesicle or vacuoles and the transport of materials across the cell surface membrane. Yes. We have to basically figure out हमारे पास कितनी statements correct हैं यहाँ पर। Both mechanisms occur to allow bulk transport across the cell surface membrane. Yes.
Endocytosis involves taking materials into the cell, whereas exocytosis involves the release of materials from the cell. Yes. Some of the cell surface membrane is lost when endocytosis occurs. And there is an increase in the cell surface membrane when exocytosis occurs. अब ये कहना क्या चाह रहे हैं? हमारे पास जब एंडोसाइटोसिस होता है, लेट्स से दिस इज बेसिकली आवर सेल सरफेस मेम्ब्रेन, और इसको मैं अगर ऐसे शो करूं लेयर में, तो ये इस तरह से मैंने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ड्रॉ कर ली। अब मेरे पास एक स्पीसी है, एक सेकेंड, इट वांट्स टू एंटर इनसाइड द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अब वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन में आएगी, हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन की इनवर्ट फोल्डिंग होगी, और सेल सरफेस मेम्ब्रेन वुड फोल्ड इनवर्ड्स, और ये चीज सेल सरफेस मेम्ब्रेन को पुश करती रहेगी, पुश करती रहेगी, पुश करती रहेगी, एंड इवेंचुअली हमारे पास क्या होगा कि a part of the cell surface membrane would form a membrane bound vesicle around the thing that we are taking in, और जो रिमेनिंग गैप रह जाएगा वो गैप आपस में फिल इन हो जाएगा। सो एंडोसाइटोसिस में जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बनती है, वो मेम्ब्रेन कहाँ से आ रही है? वो मेम्ब्रेन हमारे पास आ रही होती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन से। So yes, some of the cell surface membrane is lost when endocytosis occurs. सही है। अब there is an increase in the cell surface membrane when exocytosis occurs. अब इसी को हम रिवर्स कर देते हैं। ये हमारे पास लेट्स से गोल्जी बॉडी ने वेसिकल बना के भेजी और इस चीज को हमने बाहर भेजना है। Now this membrane would start fusing with our cell surface membrane. वो फ्यूज करती रहेगी, फ्यूज करती रहेगी, फ्यूज करती रहेगी टू अ पॉइंट कि हमारे पास it would become part of the phospholipid bilayer, and eventually फिर वो जो चीज है वो बाहर मूव कर जाएगी from our membrane. So yes, there is an increase in the cell surface membrane when exocytosis occurs. हमारे पास जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्यूज करती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ, वो बेसिकली रह जाती है, उसके जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है वो रह जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं इन आवर सेल सरफेस मेम्ब्रेन during exocytosis. And when something enters inside our cell via endocytosis, तो जो membrane bound vesicle बनती है, वो membrane bound vesicle के जो phospholipid parts है, जो membrane है, वो actually pinched off है from the cell surface membrane. So all statements are correct. A student was asked to calculate the surface area to volume ratio for an agar cube with a side length of 5.5 millimeters, which surface area to volume ratio is correct. So for surface area, we would do 6L square, which would be 6 times 5.5 square. This comes out to be 181.5 mm square. अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम is L cube, so 5.5 cube. This is basically 166.375. This is our surface area, this is our volume. Let's put them together. Surface area upon volume ratio. So this would come out to be 1.09. So this is 1.09 is to 1. Now what is our closest guess? 0.2 is to 1 नहीं हो सकता, 0.9 is to 1 नहीं हो सकता, 1 is to 1 नहीं हो सकता। हम 1.09 को राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.1 is to 1 पे, and hence option D is the correct answer over here. Yes, Eamon. आप अगर 181.5 को डिवाइड करो 166.375 पे, व्हाट आर यू गेटिंग एज योर आंसर? 1.09, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी ना। हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आती है ना मैथ में,
सो अगर नीचे कुछ नहीं रह रहा तो नीचे हमारे पास ऑटोमेटिकली वन हो जाएगा, सही। अच्छा जी, which statement about the behavior of chromosomes during telophase is correct? Chromosomes attached to the spindles that occurs in metaphase, not in telophase. Chromosomes start to uncoil inside the newly formed nucleus. Yes. Chromosomes move towards the opposite poles of the cell. That's anaphase. Chromosomes condense into compact structures in the cytoplasm. That is prophase. So option B is the correct answer. The transmission electron micrograph shows a cell in a stage of the mitotic cell cycle. क्या लग रहा है, कौन सी स्टेज लग रही है ये सेल की? दिस इज बेसिकली द सेल। एनाफेज, वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास इधर मूवमेंट है और इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। So this is late anaphase according to me. This is your late anaphase. Which statement explain why it is difficult to identify the stage of the mitotic cell cycle shown? Chromosomes may have supercoiled and are visible, but centrioles are not visible. Not really. Anaphase may be continuing और telophase may be starting. Yes, this seems to be a plausible statement क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सारे आपके क्रोमोसोम्स आ गए हैं. So this is also possible कि हमारे पास ये start of telophase हो और late anaphase ना हो. So ये हमारे पास एक possible difficulty हो सकती है. It is unclear whether the electron micrograph shows two cells in metaphase. ये metaphase कहीं से भी नहीं लग रहा है क्योंकि metaphase में equator of the spindle पे या equator of the cell पे हमारे पास हमें क्रोमोसोम नजर आ रहे होते हैं. Some people may consider interphase to have started. हमारे पास न्यूक्लियस है ही नहीं. इंटरफेस में आपको हमेशा न्यूक्लियस दिखाई देगा. So option B is the correct answer. क्यों इस स्टेज को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है? Is this clear? Any questions? Okay. During lagging strand replication, short fragments of DNA are produced. ये क्या होता है? ये हमारे ओकाज़की fragments होते हैं. The fragments are joined together by DNA ligase, which correctly describes the structure of these short fragments of DNA. They have base sequences that are complementary to the newly synthesized leading strand. चलो देख लेते हैं. ये हमारे पास let's say template strand है और template strand पे ये हमारे पास let's say इधर T है, A है, C है, G है. तो दूसरे वाले स्ट्रैंड पर होगा A, T, G, C. हमारे पास एक नया स्ट्रैंड बनेगा. इस पे क्या होगा? A होगा, T होगा, G होगा, C होगा. जो दूसरा स्ट्रैंड है उस पे क्या होगा? हमारे पास T, A, C, G. नाउ अगर हम इन न्यू स्ट्रैंड्स को देखें, जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स हैं, आर दे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी. आर दे कॉम्प्लीमेंट्री? सो यस, हमारे पास लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. आइडेंटिकल नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. सो दिस इज करेक्ट. कंसिस्ट ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. हाँ, हमारे पास अगर लेट्स से ये लैगिंग स्ट्रैंड है तो एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है ना ये. कंटेन्स ओनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नहीं, फॉस्फेट भी होता है. So option number D is the correct answer. Okay. The genome of the bacterium E. coli has been altered to enable it to code for an amino acid that is not found in nature. तो हमने क्या कहते हैं, जीन मॉडिफिकेशन की है जिसकी वजह से एक ऐसा अमीनो एसिड जो नेचर में नहीं पाया जाता उसको हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं. All the ATC DNA stop triplets on the strand of DNA that is transcribed have been substituted to ATT. So हमारे पास ATC को हमने strand में ATT में convert कर दिया. The ATC triplet can then be inserted to code for the new amino acid. हमारे पास basically जो original strand था उसमें जो ATC था that was a stop triplet. We removed that stop triplet from the transcribed strand. कैसे? हमने ATC को convert कर दिया ATT में. जो हमने ATC ट्रिपलेट रिमूव किए हैं
those triplet can be inserted to code for the new amino acid. A new tRNA can then be constructed to carry the new amino acid. ATC ट्रिपलेट से हम न्यू अमीनो एसिड बना रहे हैं और इस नए ATC ट्रिपलेट से जो न्यू अमीनो एसिड बन रहे हैं, बेसिकली जो हमारे पास स्टॉप पोजिशन है ना, स्टॉप ट्रिपलेट्स है, हमने उनसे निकाल के हमें लेबोरेटरी में सिंथेसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस एटीसी ट्रिपलेट का, एटीसी ट्रिपलेट ओरिजिनली क्या था, एक स्टॉप कोडॉन था, राइट। अगर हमारे पास एटीसी पे, एटीसी का जो भी हमारे पास वो बनता आरएनए, वो हमारे पास स्टॉप आरएनए कोडॉन होता, तो हमारे पास सिंथेसिस वहां पे स्टॉप हो जाता। क्यों? क्योंकि उससे कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए नहीं होता ना। स्टॉप कोडॉन डज नॉट ब्रिंग एनी अमीनो एसिड बिकॉज हमारे पास स्टॉप कोडॉन से कॉम्प्लीमेंट्री कोई एंटी कोडॉन होता नहीं है टीआरएनए का। तो वो पॉइंट हम समझते हैं, वहां पे हम टर्मिनेट कर देते हैं ट्रांसलेशन। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि इस एटीसी ट्रिपलेट से कोई अमीनो एसिड बने, क्योंकि बाकी ट्रिपलेट्स के लिए तो अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं ना टीआरएनए में। एटीसी इज अ स्टॉप ट्रिपलेट, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई ऐसा टीआरएनए नहीं है जो कि अमीनो एसिड लाएगा, यही होता है नेचुरली। ये लोग कोई नई चीज बनाना चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि स्टॉप कोडॉन से भी कोई ऐसा अमीनो एसिड बने जो नेचर में अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट दे डिड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया से सारे स्टॉप ट्रिपलेट्स निकाल लिए, एटीसी ट्रिपलेट निकाल लिए और उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया एटीटी से। जो इन्होंने एटीसी ट्रिपलेट निकाले, इसको अब ये मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इससे हम एक नया अमीनो एसिड बनाएं, तो हमारे पास इस नए अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। बिकॉज टीआरएनए बेसिकली ब्रिंग्स डाउन द अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सो हमारे पास दे आर आस्किंग कि हमें एक न्यू टीआरएनए भी तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर एक नया अमीनो एसिड हो। सो व्हाट इज द एंटी कोडॉन ऑफ दिस न्यू टीआरएनए? सो हमारे पास डीएनए ट्रिपलेट से सबसे पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास टीआरएनए का एंटी कोडॉन होता है, राइट। सो हमें पहले डीएनए से एमआरएनए बनाना पड़ेगा और एमआरएनए से फिर हमें उस एमआरएनए का एंटी कोडॉन बनाना पड़ेगा ऑन द टीआरएनए। इज दैट करेक्ट? सो एमआरएनए पे तो हमारे पास एटीसी से कॉम्प्लीमेंट्री यूएजी बनेगा। अब इस यूएजी पे वो नहीं होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए ट्रांसलेशन। इस यूएजी का कोई एंटी कोडॉन एग्जिस्ट करना चाहिए और उस एंटी कोडॉन पे कोई न्यू अमीनो एसिड होना चाहिए। सो टीआरएनए का एंटी कोडॉन क्या होगा इन दिस केस? ए टी, नहीं टी थोड़ी होता है, ए यू सी। इज दिस क्लियर व्हाट हैपेंड ओवर हियर? अच्छा, क्या समझ नहीं आया? व्हाट्स कंफ्यूजिंग? व्हाट्स समथिंग व्हिच इज नॉट मेकिंग सेंस? व्हाट इज नॉट एडिंग अप? लेट मी गो ओवर इट अगेन। दे आर सेइंग कि हमारे पास एटीसी क्या है? एटीसी एक स्टॉप कोडॉन है। एटीसी normally is a stop codon. This means that it does not code for any amino acid. No amino acid is coded by it, which means the mRNA complementary to ATC does not have a complementary tRNA with an amino acid. ये मतलब हुआ, यहां तक क्लियर है? दे आर सेइंग कि उन्होंने एक नया नया अमीनो एसिड इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? All the ATC DNA stop triplets on the strand of DNA that is transcribed have been substituted to ATT. ATC stop triplets को उन्होंने ATT में कर दिया। अब stop triplet क्या बन गया है? This has become the stop triplet. ATC को वो मॉडिफाई करना चाहते हैं कि इस ATC ट्रिपलेट्स पे हमारे पास अब ये स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट ना करे, इंस्टेड ये ट्रिपलेट एक नए अमीनो एसिड को कोड करे। यहां तक आर यू विद मी? एटीसी ट्रिपलेट के लिए अगर हमें हमें एक नया अमीनो एसिड कोड करवाना है इस एटीसी ट्रिपलेट से, तो इस एटीसी ट्रिपलेट का जो अमीनो एसिड हमें चाहिए वो किसी टीआरएनए पर होगा। तो हमें ऐसा टीआरएनए भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा।
बनाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। नाउ हमारे पास जो डीएनए का ट्रिपलेट होता है, दैट डीएनए ट्रिपलेट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू डीआरएनए। डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए का एंटीकोडॉन होता है। दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द एंटीकोडॉन ऑफ दिस न्यू टीआरएनए। एटीसी से जो अमीनो एसिड हमें चाहिए उसके टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि इस डीएनए से एमआरएनए क्या बनेगा, यूएजी बनेगा। अब इस एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री हमें टीआरएनए चाहिए, तो यूएजी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए यू सी। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, नो नो दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। 40% of the bases in a section of a non-transcribed strand are purine molecules. So non-transcribed strand है, non-transcribed strand, और ये हमारे पास है transcribed strand. 40% of the bases in a section of non-transcribed strand are purine molecules. So इसमें हमारे पास 40% purines है। अगर नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड में 40% प्यूरीन्स हैं, सो कहना ऐसे कि ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड में 40% पिरामिडीन्स होंगी। अच्छा, तो ये हमने पहले से ही थोड़ा रफ वर्क कर लिया। व्हाट विल बी द टोटल परसेंटेज ऑफ साइटोसिन एंड यूरासिल बेसिस इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन द एमआरएनए, इन द इमेच्योर एमआरएनए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अदर स्ट्रैंड। साइटोसिन एंड यूरासिल क्या है, साइटोसिन एंड यूरासिल आर पिरामिडीन्स। वी नो कि हमारे पास जो ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड है, दिस वन, this transcribed strand has 40% pyrimidines, which means कि इससे कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास जो वो बनेगा आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दिस इज योर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में अगर 40% pyrimidines है ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड में, तो 40% प्यूरीन्स होंगी। इज दैट करेक्ट? द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वुड हैव 40 pyrimidines की 40 प्यूरीन्स, और हमारे पास फिर pyrimidines कितनी होंगी, 60% pyrimidines होंगी। Okay, let's do it again. Let me use a clearer version. इसको हटा देते हैं। ये वाली कैलकुलेशन समझ आ गई थी कि अगर नॉन ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड पे 40% प्यूरीन्स हैं तो ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड पे 40% पिरामिडीन्स होगी। लेट्स जस्ट जूम इन ऑन द ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड। दिस ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड हैज व्हाट, इट हैज 40% पिरामिडीन्स। तो मुझे बताओ अगर 40% पिरामिडीन्स हैं, सो प्यूरीन्स कितनी होंगी इस ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड पे? How 40? 40 plus 40 makes up 80, not 100. So we would have 60% purines. अब हमारे पास इस ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? राइट दैट डाउन इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी pyrimidines and how many purines would be present in the primary transcript? Tell me the ratio or the percentage of purines and pyrimidines in the primary transcript. 60 what? Purines or pyrimidines? Why 60 purines? प्यूरीन्स किससे बाइंड करती हैं? प्यूरीन्स पिरिमिडीन से बाइंड करती हैं, प्यूरीन्स प्यूरीन से बाइंड करती हैं।
एडेनिन किससे बाइंड करेगी? व्हाट एडेनिन बाइंड्स टू? थाइमीन और यूरासिल। एडेनिन प्योर एज गोल्ड, प्योर एज गोल्ड। हमारे पास प्योरीन्स होती हैं एडेनिन एंड गुआनिन। Adenine binds to thymine and uracil, which are pyrimidines. Purines would always bind to pyrimidines. Guanine binds to cytosine. Cytosine is a pyrimidine. So हमारे पास अगर 60 प्यूरीन्स हैं तो हमारे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में 60 pyrimidines होंगी. So we would have 60% pyrimidines and we would have 40% purines. Now they're asking what will be the total percentage of cytosine and uracil, which are your pyrimidines, in the primary transcript that is transcribed from the other strand of DNA. Pyrimidines कितनी है primary transcript में? 60%. Is this clear now? Which statement about xylem vessel elements is correct? A. Hollow vessels enable constant movement of water up and down a plant. हमारे पास unidirectional movement होती है, पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है, नीचे नहीं जाता. So down तो नहीं जाता. Incorrect. Pits enable the movement of water into adjacent xylem vessels. Yes, हमारे पास water की movement from the xylem enable ही उस point पे होती है जहां पर lignin absent होता है, जो कि आपके pits होते हैं. Seems to be correct. Vessels contain numerous mitochondria. Incorrect. Vessels contain perforated crosswalls called sephlates. Incorrect. Option B is the only plausible answer over here. Ammonium ions NH4 plus can enter the xylem of plant roots by two pathways. In the apoplast pathway, ammonium ions move through cell walls until this pathway is blocked by the Casparian strip. Ammonium ions then enter the cytoplasm of root cells. That is कि वो apoplast pathway से फिर symplast pathway में आ जाते हैं. In the symplast pathway, ammonium ions move through the cytoplasm of root cells. A scientist measured the uptake of ammonium ions in the xylem of Arabido, whatever this name is, I don't know how to pronounce. The SGN3 mutant of A. thaliana does not have a Casparian strip. In SGN3 mutant, ammonium ions can enter the xylem without entering the cytoplasm of root cells. यानी कि Casparian strip अगर नहीं है, so the apoplast does not get blocked. Apoplast is not blocked. The SGN3 mutant ammonium ions can enter the xylem without entering the cytoplasm of root cells. Okay. The bar chart shows the scientist results. SGN3 mutant पे हमारे पास क्या कहती हैं? No Casparian strip, no Casparian strip. Which conclusion is correct? Fewer ammonium ions enter the xylem when they have to move through the cytoplasm of root cells. More ammonium ions enter the xylem at low soil concentration of ammonium ions. नहीं, हमारे पास low concentration of ammonium ions पे more ammonium ions तो नहीं move कर रहे, तो B तो सही नहीं लग रही. C. The Casparian strip acts as a barrier to reduce the movement of ammonium ions. अगर हम no Casparian strip को Casparian strip वालों के साथ compare करें तो almost same नहीं है हमारा uptake, almost same है. So Casparian strip की presence और absence से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा movement of ammonium ions पे. The loss of Casparian strip has little effect on the movement of ammonium ions into the xylem. Yeah. पहला वाला क्या था? Fewer ammonium ions enter the xylem when they have to move through the cytoplasm of root cells. हमारे पास दोनों कंडीशंस में, चाहे वो एपोप्लास्ट पाथवे से आ रहे हो, चाहे वो सिम्प्लास्ट पाथवे से आ रहे हो, हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेंट्रेशन है. इसमें भी हमारे पास सेम आ रही है, इसमें भी सेम आ रही है. सो हमारे पास भले वो साइटोप्लाज्म से मूव करें, भले वो सेल्यूलोज सेल वॉल से मूव करें, ज्यादा फर्क हमारे पास ऑन द अमाउंट ऑफ अमोनियम बीइंग टेकन इन नहीं हो रहा. इज दैट करेक्ट? सो ए बी इनकरेक्ट ही लग रही है. So D is the correct answer. Which root correctly shows processes required for the movement of water from a root hair cell to the atmosphere?
root hair cell to atmosphere, cohesion, diffusion, evaporation. This is pretty easy. It is A. Cohesion, हमारे पास cohesive forces होंगी water में, तभी वो ऊपर की तरफ move करेगा in a continuous column. So cohesion is required. Diffusion, जब हमारे पास water vapor diffuse करेंगे through the stomata, तो हमारे पास water vapor, हमारे पास पूरा वो cycle चलेगी कि हमारे पास और moisture आएगा on this mesophyll cells, जिसकी वजह से xylem in the leaf से water move करेगा toward mesophyll cells, जिसकी वजह से tension create होगी. So diffusion is also important. Evaporation is also important क्योंकि जब mesophyll cell surface से water evaporate करता है तो ही water vapor diffuse होता है. So A is the correct answer. Which processes can be carried out by mature red blood cells? Active transport, yes. ये क्वेश्चन अभी ग्रुप में भी आया था, मैंने बताया था that active transport के लिए जो ATP है, ATP comes from anaerobic respiration. Anaerobic respiration हमारे पास क्या कहते हैं? Respiration. It does not require माइटोकॉन्ड्रिया. सेल डिविजन नहीं हो सकता क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है, फेगोसाइटोसिस नहीं करते, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते क्योंकि सारे ऑर्गेन्यूल्स खत्म हो जाते हैं ना पिछोर रेड ब्लड सेल्स के. The photomicrograph shows 3 white blood cells labeled X, Y, and Z, which row correctly identifies these cells. अच्छा जी. This is a bean-shaped nucleus. Bean-shaped nucleus. This is a lobe nucleus. This is a large nucleus. X हमारे पास होगा lymphocyte. लोब न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल का. बीन शेप होता है मोनोसाइट का. Z is monocyte, Y is neutrophil, X is lymphocyte. When a blood vessel is damaged, it can result in problems in the body, which row identifies the blood vessel that could have been damaged. Blood is not being distributed to organs that need it. Blood is not returning to the heart and is collecting in organs. Blood surges mean that relatively constant blood pressure is not maintained. अच्छा जी. Blood is not being distributed to organs that need it. It has to be artery. And that too हमारे पास क्या कहते हैं, organs तक blood नहीं जा रहा, तो ये aorta भी हो सकते हैं क्योंकि अगर aorta में डैमेज हुआ जो कि इलास्टिक आर्टरी है तब भी हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड अफेक्ट हो सकती है. और फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गन्स के पास जो जा रही होती है, जो दूर होती हैं हार्ट से, मस्कुलर आर्टरीज, उनमें भी अगर डैमेज है तो हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो सकती है. तो कॉलम 1 से तो हमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या आंसर होगा. ब्लड इज नॉट रिटर्निंग टू दी हार्ट एंड इज कलेक्टेड इन ऑर्गन्स. ब्लड की जो रिटर्न वाली फेज होती है वो वेन्स पे डिपेंड करती है, आर्टरीज पे डिपेंड नहीं करती. सो हमारे पास ए और सी तो नहीं हो सकते, बी और डी में से ही कुछ होगा. Blood surges mean that relatively constant blood pressure is not maintained. हमारे पास जो blood pressure है वो veins में तो little to none होता है, arteries में ही होता है जो होता है. So vein have no significant blood pressure changes. हमारे पास जो pulsatile आती है, जो हमारी ये pulse आती है, वो कहाँ पे present होती है, वो arteries में present होती है, उसके अलावा किसी भी blood vessel में present नहीं होती. No significant blood pressure in veins. So blood surges का मतलब ये, ब्लड सर्जेस का मतलब होता है अचानक से ब्लड इंक्रीज कर जाए. सो ब्लड सर्जेस हमारे पास आर्टरी में आ सकते हैं क्योंकि आर्टरी में ब्लड पंप हो रहा होता है, तो हमारे पास ब्लड सर्जेस आर्टरी में आ रहे होते हैं, वेन में नहीं आ रहे होते. सो दिस वुड बी इनकरेक्ट. तो हमारे पास क्या कहते हैं ना, सबसे ज्यादा जो ब्लड सर्जेस आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, आयोटा, राइट. और हमारे पास किसमें आएंगे, आपके पास पल्मोनरी आर्टरी में. क्योंकि हमारे पास ब्लड सर्ज कहाँ पे आएगा, ब्लड सर्ज तब आते हैं जब हमारे पास सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, डायरेक्टली आर्टरी में क्या कहती हैं, ब्लड जाता है. सो वो हमारे पास इलास्टिक आर्टरी होगी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी एम्बिग्विटीज? Okay, the diagram shows how tissue fluid is formed. What is the net pressure causing tissue fluid to flow out of the capillary at the arteriole end? हमारे पास क्यों टिश्यू फ्लूइड फॉर्म हो रहा है? अच्छा जी.
हमारे पास यहाँ पर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, यहाँ पर लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना। इस डिफरेंस की वजह से हमारे पास टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन होगी। सो ये कितना डिफरेंस है, 4.3 माइनस 1.1। 4.3 माइनस 1.1 would be 3 point, एक सेकेंड, just a minute। 4.3 माइनस 1.1, सो 3.2 बाहर आएगा और हमारे पास रिटर्न भी हो रहा है। सो 3.3 माइनस 1.3, 0। 3 माइनस 1 2, इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, आंसर वुड बी 1. नाउ लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास 3.2 किलो पास्कल्स का डिफरेंस है यहाँ पर। इज दैट करेक्ट? कि हमारे पास जो नेट फ्लो ऑफ मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द टिश्यू फ्लूइड वाला एरिया, वो कितना है? ये हमारे पास 3.2 का डिफरेंस है। इस 3.2 की वजह से इस तरफ मूवमेंट हो रही है। इज दैट करेक्ट? लेकिन हमारे पास कुछ जो फ्लूइड है वो वापस भी जा रहा है। कितना फ्लूइड वापस जा रहा है? किस डिफरेंस की वजह से फ्लूइड वापस जा रहा है? 2 किलो पास्कल्स के डिफरेंस की वजह से वापस जा रहा है। इज दैट करेक्ट? सो 3.2 की वजह से डाउनवर्ड्स मूवमेंट है या आउट ऑफ द कैपिलरी मूवमेंट है, और 2 के डिफरेंस की वजह से टूवर्ड्स द कैपिलरी मूवमेंट है। हम क्या करते थे फिजिक्स में, क्या करते थे कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस लगनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो लेट से यहाँ पर हमारे पास 3.2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 3.2 माइनस 2 हो जाएगा 1.2 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगा? 3.2 वाला डायरेक्शन विच इज दिस डायरेक्शन, है ना। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। 3.2 के डिफरेंस की वजह से आउट ऑफ द कैपिलरी मूवमेंट हो रही है, 2 के डिफरेंस की वजह से इनटू द कैपिलरी मूवमेंट हो रही है। सो टोटल नेट मूवमेंट आउटसाइड क्या हो रही है? दैट वुड बी 3.2 माइनस 2 gives us 1.2 kilopascals। ये हमारे पास नेट डिफरेंस है which is causing the movement out of the capillary। Is this clear? Okay. What happens when carbon dioxide is transported by RBCs? Hydrogen carbonate ions move into the red blood cells and chloride ions move into the plasma। नहीं, plasma incorrect, उल्टा होता है। Chloride ions move into the red blood cells and bind to hemoglobin। नहीं, हमारे पास क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन से तो वो बाइंड नहीं करते, ये पार्ट जो है वो सही है, ये वाला पार्ट गलत है। Chloride ions move into the red blood cells and hydrogen ions move into the plasma। No, chloride ions move into the red blood cells and hydrogen carbonate ions move into the plasma। Yes, that's correct। What is typically found in the trachea, bronchi and bronchioles in the human gas system? कार्टिलेज खाली ट्रैकिया और ब्रोंका में होती है, ब्रोंक्यूल्स में नहीं होती। सीलिएटेड एपिथेलियम यस, स्क्वामस नो, सो 33 इज बी। The photomicrograph shows a section through part of the human gas exchange system which structure is shown। हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्क नजर आ रही हैं हमें कार्टिलेज की, प्लेट्स नजर आ रही हैं कार्टिलेज की, सो दिस वुड बी योर ब्रोंकस। नहीं, ट्रैकिया में चंदा हमारे पास कंटिन्यूअस होता। ट्रैकिया में हमारे पास सी शेप कार्टिलेज होती है ना, अगर ये कार्टिलेज हमारे पास क्या कहते हैं कंटिन्यूअस होती और बीच में फ्रेगमेंट्स नहीं होते, तो हमारे पास दिस वुड हैव बीन अ ट्रैकिया। बट अगर मैं जूम इन करूं तो आप देख सकते हो कार्टिलेज इतनी है, फिर हमारे पास ये कार्टिलेज है। सो दिस इज बेसिकली डिस्क्स ऑफ कार्टिलेज, प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज, जो कहां पर होती है, ब्रोंकस में होती है। Which factors are required for the efficient diffusion of oxygen and carbon dioxide in the human gas exchange system? Clean and warm air entering the lungs, maximized air of exchange surface, minimum distance between alveoli and blood। हमारे पास efficient diffusion of oxygen के लिए ये दोनों चीज हमें चाहिए।
क्लीन एंड वार्म एयर जरूरी नहीं, क्योंकि इतनी दफा होता है हमारी जो एयर है वो क्लीन नहीं होती, या अगर हम फॉर एग्जांपल किसी स्नोई एरिया में होते हैं तो एयर वार्म भी नहीं होती। तो हमारे पास हमें मैक्सिमाइज्ड एरिया ऑफ एक्सचेंज सर्फेस चाहिए होता है, जो हमें एल्व्यूलाई के थ्रू मिल जाता है, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एल्व्यूलाई एंड ब्लड वो हमें वन सेल थिक कैपिलरी और वन सेल थिक एल्व्यूलाई की वजह से मिलता है। सो दिस वुड बी डी। Which statements correctly identify why it is difficult to eliminate TB? Humans have access, humans have limited access to clean water. TB गंदे पानी की वजह से नहीं होता है, TB contaminated पानी की वजह से नहीं होता. So one is out, which means A is out, B is out, C is out, D would be the only correct answer. फिर भी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. ह्यूमंस कैन बी इन्फेक्टेड बट द पैथोजन कैन बी इनएक्टिव. करेक्ट. एसिम्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, जैसे कोविड में होता था, बहुत से लोगों का कोविड डायग्नोज नहीं था क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स थे, बट वो पास डाउन कर रहे थे. या ए इज लिंक्ड टू कॉलरा नॉट टू टीबी. वन इज लिंक्ड टू कॉलरा नॉट टू टीबी. अ नंबर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ द पैथोजन हैव इवॉल्व्ड, जिसकी वजह से टीबी जो है हम उसको इफेक्टिवली इरेडिकेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा. ओके. Bacteria can become resistant to antibiotics. What can help reduce the development of antibiotic resistance in bacterium? Use specific antibiotics instead of wide spectrum. Yes. Use antibiotics to treat viral infections. No. Develop new antibiotics. Yes. 1 and 3 only. Option number C. The diagram shows one way of testing the effect of an antibiotic on bacteria. Petri test with nutrient agar containing bacteria. So ये हमारे पास पूरी bacteria की colony है. Disc of filter paper soaked in antibiotic. ग्रोन फॉर 5 days. इतने एरिया में हमारे पास जो बैक्टीरिया था उसकी जोन ऑफ इनहिबिशन आ गई. यहाँ पर हमारे पास नो बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक ऑब्वियसली. The table shows the results of testing 5 different types of bacteria. हमने 5 different bacteria को इसी तरह से टेस्ट किया with one antibiotic. Zones of less than 13 millimeter show the presence of resistant bacteria. अगर 13 millimeter से कम के हमारे पास जोन ऑफ इनहिबिशन है तो हमारे पास वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होंगे. अगर हम बात करें टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन डे 1, तो डे 1 पे 24.1 थे, डे 2 पे 21.9 थे, डे 3 पे 19, डे 4 पे 17.6, डे 5 पे 14.3. ये नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, इसे रेजिस्टेंस डेवलप नहीं की. इसकी बात करें तो इसने क्या कहते हैं रेजिस्टेंट डेवलप की भी है, इट इज रेजिस्टेंट. इसकी अगर बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंट है. And this too is resistant, and this is non-resistant. Which statement can be supported by this data? All the types of bacteria become resistant to antibiotics over time. नहीं, not necessarily. ये तो डेटा हमारा प्रूव नहीं कर रहा है. Only types 2, 3, and 4 show resistance to the antibiotic. That's true. The antibiotic can be used to treat type 1 and 3. No, it can be used to treat type 1 and 5. Type 5 of the bacteria can never become resistant. हमें क्या पता, इस डेटा से तो हमें नहीं पता चल रहा. So option B is the correct answer. Some responses made by cells of the immune system to a pathogen are listed. Mitosis recognizes the pathogen, produces memory cells, secretes enzyme. Which responses are correct for phagocytes? Phagocytes do not produce memory cells. So 3 जहां जहां है हम उसको कैंसिल कर देते हैं. So option D हमारे पास सही आंसर है. Recognizes the pathogen, yes. Secretes enzyme, yes. Some vaccines do not contain antigens. The vaccines contain a molecule of mRNA. Cells in the immune system use the mRNA molecule to make a protein antigen. अच्छा जी, एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका मतलब क्या है. यूजुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास वैक्सीन्स में वो एंटीजेंस जो कि हमारे उस पर्टिकुलर डिजीज वाले पैथोजन के एंटीजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि उस पैथोजन के जो एंटीजेंस हैं उनके खिलाफ क्या बन जाए, एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बन जाए. कुछ वैक्सीन्स में हम एंटीजेंस नहीं रखते, इंस्टेड हम क्या रख देते हैं, हम mRNA फ्रैगमेंट्स डाल देते हैं. क्यों? एंटीजन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एंटीजन की डेफिनेशन ये होती है, इट इज यूजुअली अ
macromolecule. It is a macromolecule which is usually a protein. So antigens most of the times आपके प्रोटीन ही होते हैं. mRNA से क्या होता है, अगर mRNA ऑफ द एंटीजन प्रोटीन हम वैक्सीन में इंसर्ट कर देंगे, तो जब वैक्सीन में जो mRNA है जिससे एंटीजन प्रोटीन बन सकता है, वो बॉडी में जाके ट्रांसक्राइब हो जाएगा और हमारे पास वो एंटीजन जिसके खिलाफ हमें एंटीबॉडीज बनानी है, वो एंटीजन बॉडी में आ जाएगा, नॉन सेल्फ एंटीजन बेसिकली ड्यू टू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द mRNA इनसाइड द वैक्सीन बन जाएगा. मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई या सर के ऊपर से गुजर गई? इज इट क्लियर? Okay. The statements describe the stages of how mRNA vaccines work when they enter a cell of the immune system. B lymphocytes and T lymphocytes with complementary receptors bind to the protein. Okay, just give me a second, guys. Give me 1 second. I'll be back. Okay, I'm so sorry. Okay, so first statement is B lymphocytes and T lymphocytes with complementary receptors bind to the protein. Lymphocytes differentiate into memory cells that give long-lasting immunity. Ribosomes translate the mRNA molecule to make a protein. The cell displays the protein on its cell surface membrane. सबसे पहले प्रोटीन बनेगा. mRNA से प्रोटीन सबसे पहले बनेगा. फिर वो जो प्रोटीन एंटीजन बना है वो डिस्प्ले होगा. उसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री बी लिम्फोसाइट्स और डी लिम्फोसाइट्स हैं वो उस प्रोटीन से बाइंड करेंगे and then they will differentiate into memory cells. 3, 4, 1, 2, option number C. Any questions, any suggestions, any improvements? Are we good? Okay, so I shall be seeing you guys tomorrow. I'll be communicating the class timings for tomorrow on the GC. Inshallah soon. Take care. Allah Hafiz. Till then.